Get equipped exercise. Problems 1 to 10. वन टू 10 में कोई और डाउट किसी को? थ्योरी बढ़िया, थ्योरी पढ़ो। 11 to 20. 13. 15. 13 and 12. 15, 15. 13. 13, 15. Sir, 19. Okay, 21 to 30. Sir, 23. Sir, 30. 31 to 40. 37. Sir, 34. 36. 40. 35. 41 to 45. 43. चलो डिस्कस करते हैं पहले इतने प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या गिवन है प्रॉब्लम में? So 8th problem, we have to prepare a graph of lambda versus dilution. Correct? Root C के से straight line बनती थी, and one thing we know that on increasing dilution, lambda increases. तो increasing graph तो बनना है ये. Second thing we know is, if we do infinite dilution, मतलब x axis में infinity पे भी चले जाए. At infinite dilution also lambda is finite. Correct? Yes. So this graph is an increasing graph. First derivative is positive, but definitely second derivative has to be negative. Clear? So graph will be somewhat of this shape. At infinite dilution also lambda will be finite. 12th problem. क्या दिया है 12th problem में? Out of which reactions is not possible at cathode? At cathode we know the reaction occurring is reduction. So oxidation reactions are not possible at cathode. In option A we can see chromium is getting oxidized. So that reaction is not possible at cathode.
13th problem. In 13th problem we are having a sample of copper with zinc impurity और इसको purify करना है. So definitely the impure plate we will make as anode ताकि impure plate से copper dissolve होता जाए solution में, and pure plate we will make as cathode ताकि उस पे केवल pure copper deposit होता जाए, and we can achieve electrolytic refining. So in electrolytic refining always the impure plate is made as anode and the pure plate is made as cathode. Correct? Fifteenth problem. फिफ्टींथ में क्या दिया है? बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl. For these three we are given equivalent conductance. Lambda E are given x1, x2 and x3. So what will be the molar conductance of these three? 2x1, 2x2, x3. Yes, sir. Correct? By Kohlrausch's law, 2x. molar conductance of barium sulfate we can write as 2x. 2x1 plus 2x2 Minus x3. minus 2x3. Correct? Yes. And this also we can write as kappa, which is given to us as Y into 1000 by solubility S. So from here solubility we will get as 1000 Y by 2 times x1 plus x2 minus x1. And we have to find the KSP value. KSP will be equal to S square. Square. That will be 10 raised to 6y by 4x1 plus x2 minus x3 का. Yeah? Note कर लो इसको. Sir, 23rd नहीं है doubt. 16th problem. 16th problem is given on conductometric titration. ये तो कराए थे ना सारे Yes, का? yes, sir. Even. Benzoic acid is titrated with NaOH. Weak acid को titrate कर रहे हैं strong base से. कैसा ग्राफ था? पहले slight dip, फिर slight increase, फिर drastic increase. Correct? So best option matching will be option D. Nineteenth problem. A hydrogen electrode is placed in a buffer solution of acetic acid and sodium acetate in ratio of Y to X and X to Y respectively. Oxidation potentials are E1 and E2. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन हाफ सेल का नेक्स्ट इक्वेशन से E will be E0 minus 0.059 log of H plus concentration. So
So that will become minus 0.059 log of H plus concentration. That will be 0.059 times pH. Minus log H plus ko we can write as pH. And pH of a buffer solution is pKa plus log of salt by acid. So E1 हो जाएगा 0.059 times pKa plus log of X by Y. Or we can write E1 by 0.059 is pKa plus log of X by Y. Very similarly, दूसरे के लिए we can, for the second we can write E2 by 0.059 is pKa plus log of Y by X. If we add these two, E1 plus E2 by 0.059 is 2 pKa. And hence we can solve for pKa. (27) क्या दिया है 27th प्रॉब्लम में? The standard solution of x minus and y minus Z2 is passed. तो एक solution है, उसमें x माइनस है और y माइनस है. इसमें Z2 गैस पास की गई. क्या पॉसिबल रिएक्शंस है? पॉसिबल रिएक्शन है ये X2 बन जाए और Z को Z माइनस बना दे, Y2 या ये Y2 बन जाए और Z को Z माइनस बना दे. ये पॉसिबल रिएक्शन है. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आगे इंफॉर्मेशन से देखते हैं. तो आगे दिया है X2 is liberated and Z minus is formed while Y minus remains unaffected. मतलब ये रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन नहीं हो रहा है. मतलब इस रिएक्शन का E नॉट पॉजिटिव है और इस रिएक्शन का E नॉट नेगेटिव है. इसका E नॉट क्या होगा? इसका E नॉट होगा E नॉट SRP, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Z2 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X2, और ये पॉजिटिव है. मतलब Z का रिडक्शन पोटेंशियल X से ज्यादा है. और इसका E नॉट होगा E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Z2 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Y2, और ये 0 से कम है, नेगेटिव है. मतलब Z2 का रिडक्शन पोटेंशियल Y2 से कम है. तो नाउ वी कैन अरेंज. करेक्ट? मिल जाएंगे आंसर सर? हाँ सर. 30th प्रॉब्लम. क्या गिवन है 30th में? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड AgCl दिया है 3.4 into 10⁻⁻⁶. Ag प्लस और Cl माइनस की दी है, सॉल्युबिलिटी निकाल ली है. ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है. देखो क्या क्या वैल्यूज दी है अपने को. लैम्डा में कितना आ जाएगा AgCl का? 62.3. लैम्डा एम ऑफ AgCl विल बी 62.3 Ag प्लस का और Cl माइनस का 67.7. कितना हो जाएगा ये? 130. दिस शुड बी इक्वल टू कापा. कापा दिया है 3.4 into 10⁻⁻⁶.
into 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ से आ गई 3.4 बाय 130 इंटू 10⁻⁻3। अगर KSP निकालना है दैट विल बी S स्क्वायर। क्या निकालना, क्या है KSP? नहीं सॉलिबिलिटी। सॉल्युबिलिटी निकालनी है ग्राम्स पर लीटर और मोल्स पर लीटर में। तो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा इन मोल्स पर लीटर मोलारिटी में, और इसी को ग्राम्स पर लीटर में 3.4 बाय 130 KgCl ग्राम्स पर लीटर। तो दो आंसर मैच करेंगे, एक मोल्स पर लीटर में, एक ग्राम्स पर लीटर में। सर इस क्वेश्चन में जो मोलर कंडक्टिविटी दिया है वो लिमिटिंग है क्या? मोलार कंडक्टिविटी कौन सी वैल्यू पे? वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है क्या? हाँ, और क्या, वो तो केवल एक आयन की दी है ना, मतलब वो आयन फ्री है और किसी के साथ उसको इंटर आयनिक अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है। सो हाँ। सर दिस क्वेश्चन सेंटीमीटर्स के यूनिट्स में है, तो हमने जब डिराइव किया था तो जो मोलारिटी यूज की थी वो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल यूज की थी। तो वो मोलारिटी कैसे मोल्स पर 1000 का फैक्टर उसी लिए तो किया था यार, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब की वजह से। सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब का ही तो कन्वर्जन फैक्टर था, वो 1000। तो वो मोल्स में ही आता है। 34 we are given a cell Ag plus Ag plus Ki Agi Ag। क्या क्या पूछा इसमें? KSP निकालना है E नॉट के रिलेशन में। तो इस सेल का E नॉट क्या हो जाएगा? E नॉट ऑफ I माइनस AgI Ag माइनस E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag। ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल है। फ्री मान इसको कैसे लिख सकते हैं? E नॉट ऑफ मेटल आयन प्लस 0.059 log of KSP माइनस E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag। कैंसिल हो गया तो E नॉट हमें मिल गया 0.059 log of KSP। रिलेट कर लो, RT के टर्म्स में दिया है तो 0.059 क्या होता था? E नॉट was 2.303 RT by तो ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। या 35 में दिया है द स्टैंडर्ड EMF ऑफ फॉलोइंग सेल कैडमियम क्लोराइड Cl minus AgCl Ag Cl minus AgCl Ag। ये सेल दिया है, इसका स्टैंडर्ड EMF दो टेम्परेचर्स पे दिया है। हाँ, डेल्टा एच निकालना है। तो क्या क्या दिया है इसके EMF की वैल्यू हम लोगों को? क्या दिया? 6915। ये कितने पे दी है? और 0.675 तो दो टेम्परेचर्स पे हमें इसकी वैल्यू दी है।
So if you remember, delta S naught by NF was equal to D naught by dt. तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे dt कितना है 15 और 0.6753 माइनस 0.6915. इससे डेल्टा एस नॉट निकल जाएगा. एन की वैल्यू मालूम है इस रिएक्शन के लिए 2 और एफ इज 96500. तो डेल्टा एस नॉट निकल जाएगा. डेल्टा जी नॉट निकाल ही सकते हो, ई नॉट दिया है करेक्ट, या डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हैं. डेल्टा एच नॉट ये रिलेशन आई गेव यू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस एन एफ टी डी नॉट बाय डी टी. डी नॉट बाय डी टी ये वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो. एन मालूम है, टी मालूम है, एफ मालूम है, ई नॉट मालूम है. ये लीनियर वेरिएशन है इसीलिए ही कर सकते हैं. नहीं, ये वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी नॉट बाय डी टी को वी आर सेइंग एज डेल्टा ई नॉट बाय डेल्टा. सर डेल्टा एस नॉट कांस्टेंट नहीं रहेगा, अज्यूम करना पड़ेगा उस रेंज में कांस्टेंट. 36 When 4 ampere current is passed through 1 liter 0.1 molar Fe3 plus. तो Fe3 plus के कितने मोल्स है? 0.1 मोल्स. और करंट है 4 एम्पियर्स. टाइम है 1 hour. It is partially reduced to Fe and partially to Fe2 plus. F को 96000 लेना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करना. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूज्ड इन दिस? IT by F. 4 into 3600 by 9600. कितना आ रहा है ये? कैलकुलेट करते हैं. कितना बचेगा? 6 जाएगा 160 46 by 40 volts. 3 by 0.15. 20 volts. 0.15 moles इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहा है. तो सबसे पहले फेरिक आयन किस में जाएगा? फेरिक आयन प्लस इलेक्ट्रॉन विल गो टू फेरिक. 0.1 मोल है. इलेक्ट्रॉन कितने मोल्स हैं? 0.15. तो फाइनल ये 0 होगा, ये 0.05 बचेगा, ये 0.1 मोल बच जाएगा. Now the next step will start. Ferrous ion will react with 2 electrons to go ये ion. Ferrous ion अब initially है 0.1 मोल. Electrons बचे हैं 0.05. Now the electrons are relatively heavy. तो finally ये 0. 0.05 के साथ ये 0.025 रिएक्ट करेगा, तो ये बचेगा 0.075 और ये बनेगा 0.02. Clear? So eventually we will have 0.025 mole iron and 0.075 moles of ferrous ions. Clear है? 37. For which electrolyte alpha is lambda upon lambda infinity doesn't holds good. It holds good for weak electrolytes. It will not hold for strong electrolytes. HClO4 is a strong electrolyte, so for it will not hold good. So 36
उन्होंने डायरेक्ट Fe3 plus Fe2 इसलिए निकाला। नहीं 40th प्रॉब्लम। में क्या दिया है? Given that कंपेयर करना निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल 0.25, सिल्वर का 0.8, कॉपर का 0.34 और जिंक का -0.76। Which reactions will not take place? पहले में निकेल रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। होगा yes So E naught will be reduction potential of nickel minus copper. नेगेटिव आ जाएगा, तो दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। तो ये एक आंसर हो गया। ऑप्शन बी में सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस कॉपर पॉजिटिव है, हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। सी में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन 0 माइनस कॉपर का रिडक्शन पॉजिटिव, तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा। और फोर्थ में हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 माइनस और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रिएक्शन होगा। तो बी डी होंगे, एसी नहीं होंगे, तो द आंसर विल बिकम एसी। 41st प्रॉब्लम। Consider the half reaction. 41 में ABC दिया है? है। 41 में क्या दिया है? ABC। तो क्या दिक्कत है, कुछ गलत है उसमें? ABD ABD है, चलो चेक कर लेते हैं। A going to AN plus and an electron reaction। AN plus की मोलैरिटी 1 से ज्यादा है। करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे, दो स्टेटमेंट्स रिडक्शन पोटेंशियल पे पूछे हैं, 2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे पूछे। ठीक है, तो जरा लिख लेते हैं इनकी वैल्यू। 41st प्रॉब्लम। क्या दिया है 41 में? तो E ऑफ AN प्लस A क्या हो जाएगा? E नॉट ऑफ AN प्लस A माइनस 2.303 RT बाय NF log of 1 by AN। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें E of AN plus will be equal to E naught of AN plus minus 2.303 RT by log of AN plus। ऑप्शन ए दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ AN प्लस बढ़ाया, लॉग वाली टर्म बढ़ेगी, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो EMF डिक्रीज होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी रिडक्शन पोटेंशियल पे दिया विथ कांस्टेंट AN प्लस को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पे इट विल इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ेगी, तो दिस एंटायर टर्म विल इंक्रीज, तो बी इज करेक्ट। क्या दिक्कत है? ABC भाई ये खुद 1 से बड़ा है, तो इसका लॉग नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव साइन इस नेगेटिव को प्लस कर रहा है। It is better you write it like this if you want to avoid confusion.
अब क्लियर होगा। ये कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट विल इंक्रीज। फिर सी है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, इसको बढ़ाया, इट विल इंक्रीज। सी भी करेक्ट है। डी, टेम्परेचर बढ़ाया, दिस विल डिक्रीज। डी रॉन्ग है। ए बी सी है आंसर इसका। 43। प्रॉब्लम में क्या दिया है? So same concentration solutions. Consider the following electrochemical cell: Pb, PbSO4, PbI2, Pb, which can be used to determine the EMF of the cell. तो भाई कंसंट्रेशन सेल टाइप की चीज है। ई नॉट सेल तो जीरो हो जाएगा। E cell we will have to write minus 0.059 by 2, Pb2 plus at anode minus Pb2 plus at cathode. Which further we can write. KSP एनोड का Pb2 प्लस किससे आ रहा है? सल्फेट PbSO4 से। उस तरह के सॉल्ट के लिए क्या लिख सकते हैं? KSP वैल्यू KSP SO4 का अंडर रूट KSP will be equal to S square. So this will be, we can write as KSP of PbSO4 raised to half. और कैथोड का आ रहा है PbI2 से। उस तरीके के सॉल्ट के लिए KSP is 4S3। तो उसमें ब्लड की कंसंट्रेशन we can write as solubility कितनी हो जाएगी? KSP by 4 and cube root KSP by 4 का cube root. क्लियर? थोड़ा सा सी ऑप्शन में गलती है क्योंकि PbI2 में KSP is 4S3। हाँ ठीक है, S2, हाँ करेक्ट, सही है। तो ऑप्शंस विल बिकम A and C। क्लियर है यहाँ तक? ओके। पैराग्राफ में कोई डाउट? So fourth one पैराग्राफ 4 first वाला। तो दोनों पैसेज 4 का first passing one का भी पैसेज 1 का first फर्स्ट should be negative, right? अरे नहीं तू और पैसेज 4 का फर्स्ट। Second. पैसेज 2 का सेकंड। और इंटीजर में कोई डाउट? second क्या इंटीजर में? यस सर। हाँ थर्ड वाला। इंटीजर थर्ड, so second सेकंड भी। ओके, पैराग्राफ 1 का 1। रिएक्शन दिया है 4/3Al
minimum EMF to carry out this electrolysis. So delta G is minus NF E naught. N फैक्टर बस इसका निकालना है यार. ऑक्सीजन का यहाँ 0 है, यहाँ पे -2 और 2 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व है. Means N factor is of 4. So E will become 827000 delta G naught by N factor 4 N 9650. इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा. This is the minimum EMF required. सर एक बार एल के रिस्पेक्ट में भी फोल प्रूफ कर L के रिस्पेक्ट में भी देख लो यार. हमारा मन है 0 से 3. एक एल्यूमिनियम में 3 का और कितने एल्यूमिनियम लिख रखते हैं? 4/3 4/3 into 3 कितना होगा? सर वो 2/3 जो उधर है वो उधर उधर का देख लो, उधर का 2/3 into 2 into 3. Okay. पैसेज 4 का फर्स्ट, पैसेज 2 का सेकंड पहले. पैसेज 2 का सेकंड. The correct order of equivalent conductance at infinite dilution of lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride. यह periodic table का problem है. If you remember, Li plus iron was most hydrated iron. सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन होती थी उसमें क्योंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी. उसमें हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी तो उस आयन की साइज सबसे बड़ी हो जाएगी, तो उस आयन की मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी. इसलिए उसका कंडक्टेंस विल बी लेसर देन NaCl which will be lesser than KCl. पैसेज 4 का वर्ड. When two half cells of X and Y are connected to construct a cell, electrons flow from X to Y. X और Y को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम X to Y. Means current is flowing from Y to X. Means X is anode, Y is cathode. मतलब E naught SRP of Y is greater than E naught SRP of X. Here और दिया है when X is connected to SHE, जब X को SHE से कनेक्ट कर रहे हैं then electrons flow from X to SHE. मतलब again SHE का reduction potential is more than, means SRP of hydrogen is more than SRP of पॉजिटिव. X. SRP of hydrogen is 0, means reduction potential of X is negative, means its oxidation potential is positive. अब तुम्हें क्या क्या दिया है? दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पूछा है. वाई करेक्ट? X और Y के बारे में. दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हाँ. तो दोनों या तो नेगेटिव हो सकते हैं दोनों नेगेटिव. नहीं, दोनों नेगेटिव हो गए तो माइनस में चला जाएगा ना. -0.34 प्लस वैसे हो जाएगा ना सर. हाँ देखो, अब बात समझो. X का तो नेगेटिव है, करेक्ट? और X की वैल्यू क्या दी है? 0.25, करेक्ट? तो E1 नॉट तो हो गया -0.25. अब E2 नॉट बड़ा है इससे, तो ही रिएक्शन हो रहा है ना? तो ये नहीं, ये तो हम लोग प्रूव ही कर चुके हैं. रिडक्शन पोटेंशियल Y का ज्यादा है. हाँ.
और उसका मैग्नीट्यूड 0.34 है, प्लस तो अगर वो नेगेटिव हुआ तो E2 नॉट हो जाएगा -0.34 विच इज स्मॉलर देन दिस, which cannot happen. So E2 naught definitely has to be plus 0.34. Correct? Yes, sir. Okay. Integer second. Integer second. How many Faraday's electricity are required for hydrolysis or electrolysis of 72 grams of acidified water? तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? वाटर में 4 हो जाएगा 2 होगा ना। एक H2O मॉलिक्यूल के लिए कितना n फैक्टर होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, H2O2 बन रहा है, तो 2 हाइड्रोजन को +1 से 0 में जाना है, 2 होगा। एक ऑक्सीजन को -2 से 0 में जाना है, तो वहां से भी 2 होगा। तो इफेक्टिवली वन वाटर मॉलिक्यूल एन फैक्टर विल बी 2। करेक्ट? 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो 72 ग्राम्स वाटर है, तो मोल्स ऑफ वाटर हो गए 72/80 into 2. This will be moles of electron 8. Third integer. If half cell X2 minus is connected to another Y2 plus 0.1 molar 1 molar by means of salt bridge and external. Sorry. Third integer. If aqueous NaCl is electrolyzed by 5 ampere 200 minutes, volume of Cl2 produced under STP F is 96500. So moles of electrons will be IT by F. कितना है? 5 for 200 minutes. 5 into 200 into 60 by 96500. 1 मोल क्लोरीन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो moles of Cl2 will be half of moles of electron. So 5 into 200 into 60 by 96500 into 2. So volume of chlorine at STP will be 5 into 200 into 60 by 96500 into 2 into 22.4. Clear? इसको solve कर लो. You will get the answer. Sir, हाँ. ionic mobility or Ionic mobility is the freedom or ability of ion to move in water or in aqueous solution. And ionic mobility depends on the hydration and viscosity of solution. सर मैथमेटिकली क्या होती है सर बुकलेट में क्वेश्चन भी है मैथमेटिकली तो फॉर्मूला दिया था ना तुम्हें हमने. आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला दिया था तुम्हें मैथमेटिकली. आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू फॉर एनी आयन उसका लैम्डा इंफिनिटी बाय 96500. And this is also equal to आयनिक वेलोसिटी, किस स्पीड से आयन मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स.
फिर वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वो H3O प्लस और OH माइनस बना है। H2 और O2 बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज कराना पड़ेगा ना किसी चीज का। कर लिया नोट? अच्छा, नाउ लुक ऑन फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में तो कोई डाउट नहीं बचा है। विंडो की हाँ बोलो। सर वो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैलोमल रेफरेंस मैं टोल्ड So उसका एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जस्ट गो थ्रू क्विकली फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, और उसमें देख लो कोई डाउट तो नहीं बचा रह गया है। अरे वही So 118. नहीं हुआ So 118 objective. ऑब्जेक्टिव 118, एक एक करके करते हैं वेट। 118 The highest electrical conductivity of following aqueous solution is, देखो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड और उनके डेरिवेटिव। अब उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब होगी जब सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो, और सबसे ज्यादा आयंस उस एसिड से प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसका के सबसे ज्यादा हो। अब फ्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूटेड है एसिटिक एसिड में तो इंडक्टिव इफेक्ट से इट विल इंक्रीज के, तो हाईएस्ट के आउट ऑफ दीज 4 एसिड्स विल बी ऑफ डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड, करेक्ट? तो उसका के सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट? 124। Can you repeat, sir? I am saying इसमें इन दोनों फ्लोरीन्स का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा।
Inductive effect say this will be a much stronger acid than acetic acid. So it will produce more number of ions and hence its electrical conductivity will be highest. 124. We are giving aqueous solution of weak acid has molar conductance of 19 and it is 1% ionized. So alpha 0.01 है and that is lambda m by lambda m infinity. So lambda m infinity is 1900. Clear? और बोलो ऑब्जेक्टिव में और कोई डाउट 104 52 और बोलो 708. 56. Sir, 98. Sir, 50. Sir, 86 and 57. 60. 69. Sir, 86. Sir, 8. Sir, 181, sir. 81. Sir, 92. Come here. 104. Chromium plating is applied by तो reaction दिया है. How many hours it will take to plate a thickness of 2 into 10 raised to minus 2 mm और एरिया है 0.25 मीटर स्क्वायर. तो कितना वॉल्यूम चाहिए क्रोमियम का? 0.25 मीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 raised to minus 4 और थिकनेस है 2 into 10 raised to minus 2 mm. तो सेंटीमीटर में 2 into 10 raised to minus 3. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब क्रोमियम से हमें प्लेट करना है. डेंसिटी दी है क्रोमियम की 7.19. So this is weight of chromium we require. Upon atomic weight of chromium 52 and factor in the reaction 6. This should be equal to IT by F. करंट कितना दिया है? तुम्हें क्रोमियम की रिस्पेक्ट में देखना है ना, जिस चीज से प्लेट करना है. करंट दिया है 75 एम्पियर. तो 75 into T by 96500. इससे टाइम कैलकुलेट हो जाएगा. 103. 3 Faraday of electricity is passed through Al2O3, copper sulfate and sodium chloride. So 3 Faraday electricity means moles of electrons are 3. Correct? हमें फाइंड करना है कितने मोल्स एल्यूमिनियम, कितने मोल्स कॉपर और कितने मोल्स सोडियम डिपॉजिट हो रहे हैं. मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक फैक्टर इज 3. अगर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है मींस इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम भी 3 है, कॉपर भी 3 है और सोडियम भी 3 है. एल्यूमिनियम के लिए एक फैक्टर 3 होता है, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 3/3 1. Moles of copper will be 3/2 1.5. Moles of sodium will be 3/1. That is 108. Which of the following solutions will not conduct electricity quite well? Which of the following will conduct electricity quite well? Sorry. So
Pure water conduct नहीं करता, ions are very less. Glycerol and sugar will not produce ions, they will not conduct electricity. HCl will produce ions in aqueous solution and hence it will conduct electricity well. 98. सर ये लास्ट ये 12.3 grams नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है. नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाना है. N factor is of 6. तो 12.3 grams तो मोल्स हो जाएंगे by 123 into N factor 6. This should be equal to IT upon F. How many Faradays पूछा है ना? क्या पूछा है? 50% एफिशिएंसी है, कितने कूलम चार्ज चाहिए? तो Q अगर चार्ज है इसका चाहिए इसका ट्वाइस बिकॉज 50% एफिशिएंसी है अपॉन 9650. From here you can calculate Q. 92. Three Faraday of electricity is passed through ferrous bromide. कितना आयरन मेटल डिपॉजिट होगा? तो W by 56 upon 2 is equal to 3 Faraday. So by this you can get weight of iron deposited. 86. Which one is not correct? Faraday's laws hold at all pressure, correct? Holds at only 298 Kelvin, wrong. Faraday's law hold at all temperature. It is just a mole conservation, correct? 81. If a direct current deposits 19.5 grams of potassium in 1 minute, grams of aluminium deposited by same current in same time interval, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे. पोटेशियम का 19.5 ग्राम्स बन रहा है by 39 by 1. This will be equivalents of potassium. This should be equal to equivalents of aluminium. So let's say weight of aluminium is W by 27 upon 3. $69. In electrolysis of NaCl, when platinum electrode is taken, hydrogen is liberated. When mercury cathode, it forms sodium amalgam. This is because, this I told you, hydrogen का बहुत high over voltage हो जाता है over mercury, correct? yes sir. So H2 liberation becomes much less spontaneous. 60th problem. 60 में क्या दिया है? Which of the following graphs correctly depend EH on pH of the cell? ठीक है. तो E cell का अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? E cell is equal to E dot cell minus 0.059 log of H plus minus log H plus को pH लिख सकते हैं. तो E cell will be E dot cell plus 0.059 pH. Equation of a straight line with positive slope. Clear? Option D. 57. Sir, 54th also is. Seventh problem. EMF is given 0.4747
Standard oxidation of calomel is minus 0.28. What is pH of solution? So E naught of this cell तो हो गया 0.28. E naught of cell हो गया 0.28. E cell is given 4747. Will be E naught plus 0.059. Log of H plus that will become pH. तो pH की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4747 minus 28 by 0.05. 56. Temperature coefficient of a galvanic cell is given positive. D naught by dt ये वैल्यू पॉजिटिव है. And you are asked during discharge of cell. जब एक सेल डिस्चार्ज करता है तो क्या होगा? उसका EMF कम होता है. EMF कम होता है मतलब E naught will decrease. मतलब D naught will be negative. D naught by dt का रेशियो पॉजिटिव है और D naught खुद नेगेटिव है. It means dt has to be negative. So during discharge of cell, the temperature will go down. Cell will cool. 54. The cell shown below generates a potential of 0.643. KSP पूछा है. तो मेटल एक साइड मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन है, एक साइड मेटल आयन है, उसको फ्री मान लेते हैं. तो ई सेल 0.643 दिया है. ई नॉट सेल 0 हो जाएगा माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ. अब देखो एनोड का सिल्वर बाउंड था तो दैट वी कैन राइट एज KSP बाय ब्रोमीन आयन. KSP by 0.1 और कैथोड का सिल्वर तो फ्री था AgNO3.1. Solving this, we will get the value of KSP. 52. A concentration cell is made up of Fe2 plus couple where Fe2 plus concentrations are 1 and 0.1 molar. Which are correct? तो भाई देखो जहाँ पे 0.1 मोलर है वो एनोड बनेगा और जहाँ 1 मोलर है वो कैथोड बनेगा. करेक्ट? तो क्या क्या ऑप्शंस है? द एनोड कंपार्टमेंट इज 0.1 करेक्ट. विच डिक्रीजेस एज सेल ऑपरेट्स ये रॉन्ग है. हाँ इट विल इंक्रीज. करेक्ट. तो सी क्या है? एनोड इज 0.1 डिक्रीजेस. बी क्या है? एनोड ऑप्शन बी हो जाएगा सही. एनोड 0.1 है, कैथोड 1 है. एनोड में आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कैथोड में डिक्रीज होगी. 45. 45 में मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन का पूछा है. मेटल आयन का 0.1 दिया है. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.059 लॉग ऑफ KSP. एन फैक्टर 2 है सॉरी 0.059 by 2 लॉग ऑफ KSP. को रीअरेंज करके यू कैन गेट द फार्मूला. क्लियर हो गया? So, advanced concept question we know. पहले विंडो में क्या डाउट है?
ऑब्जेक्टिव 64. नहीं, विंडो में आओ पहले, विंडो टू ITJ। So 19. विंडो ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव सिंगल आंसर, सर 10 10। क्या 10th में, एक मिनट बाद 10th में वो एरोज थोड़ा करेक्ट कर लो। I told you विंडो की एक्सरसाइज, you just correct the question C from 37 years book ना। थोड़ा इसमें मिसप्रिंटिंग है बुकलेट में विंडो वाली एक्सरसाइज में। तो ऐसे 10th प्रॉब्लम में it is actually given Z greater than Y greater than X। मिसप्रिंट उसमें देखो क्या है, Z less than Y greater than X लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअल जेई पेपर में it was Z greater than Y greater than X। सर 6 6 when a lead storage battery is discharged। अच्छा, please listen, all of you have read all the commercial cells I asked you to। Yes sir. I told you बुकलेट में सारी जो ये पेज नंबर पेज नंबर 139, 138, 139 पे जितने कमर्शियल सेल्स दिए, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, ये सब रिएक्शंस याद रखने हैं, करेक्ट। तो यू कैन सी लेड स्टोरेज सेल के रिएक्शन में क्लियरली इट इज गिवन, लेड सल्फेट बनता है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट होता है, लेड रिएक्ट होता है, सल्फेट रिएक्ट होता है। तो नाउ दिस प्रॉब्लम सेज during discharge of a lead storage cell, SO2 is involved, wrong, lead is formed, wrong, lead sulfate is consumed, wrong, lead sulfate is produced, sulfuric acid is consumed, Yes sir. correct। Yes sir. और चार्जिंग में क्या होगा, उल्टा है, lead sulfate is consumed and sulfuric acid is regenerated। ठीक है, और बोलो क्या डाउट है। 19 कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, KCl AgNO3, ये तो ग्राफ बनवाया ही था क्लास में ना। पहले कांस्टेंट रहेगा जब तक प्रेसिपिटेशन हो रहा है और फिर बढ़ेगा। सर 14. 14 14th is a very important problem. All of you read carefully that problem first of all. 14th problem in window exercise. हाँ, तो अब क्या हो रहा है देखो 14th प्रॉब्लम में हम लोग को आयरन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करनी है, Fe2 प्लस आयरन की। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का क्या मतलब है, वी वांट टू डिसाइड और वी वांट टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फेरस आयरन इन अ सॉल्यूशन। whenever we have to do a quantitative estimation, what we do a volumetric titration। तो जिस भी चीज की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करनी है उसको बीकर में ले लेते हैं, किसी दूसरे रिएजेंट को ब्यूरेट में ले लेते हैं, वी स्टार्ट पुटिंग दैट सेकंड थिंग फ्रॉम ब्यूरेट। द मोमेंट इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, वी स्टॉप द ब्यूरेट एंड बाय सीइंग द मार्किंग्स ऑन ब्यूरेट वी नो how much reactant we have used from the burette
and then we apply law of equivalence. कि equivalence of the thing in burette will be equal to equivalence of the thing in beaker, and we know the equivalence of thing in burette and hence we get the equivalence of thing in beaker and we estimate its quantity. Correct? तो अब हमें अगर Fe2 plus की quantitative estimation करनी है तो I will have to select something which can react with Fe2 plus. अब Fe2 plus react करके क्या बना सकता है Fe3 plus. Fe2 plus से Fe3 plus बनाने का वोल्टेज कितना है? Fe2 plus से Fe3 plus बनाने का वोल्टेज कितना है? -0.77. So definitely I would have to select such a thing जिसके रिड्यूस होने की पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इज greater than -0.77. Oh sorry, greater than 0.77. I have been given two options, dichromate and permanganate, और दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0.77. So I can use both of them. I can either use permanganate or I can use dichromate. लेकिन दोनों को देखो रिएक्शन के लिए H plus ions की जरूरत है. Both of them can only react in acidic medium. अभी एसिडिक मीडियम के लिए हमें कोई एसिड डालना पड़ेगा. जो चार ऑप्शंस हम लोग को दिए गए उसमें या तो HCl यूज किया जा रहा है या H2SO4. अब H2SO4 लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि H2SO4 का H प्लस तो मीडियम को एसिडिक कर देगा और जो H2SO4 का बचा सल्फेट है उसमें सल्फर ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता है तो इट विल नॉट रिएक्ट विद डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, तो इट विल नॉट इंटरफेयर इन द रिएक्शन. बट इफ आई यूज HCl का H प्लस तो मीडियम को एसिडिक बना दिया. Cl माइनस क्या करेगा? Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो सकता है क्लोरीन और उसका वोल्टेज क्या है? -1.4. तो अगर 1.4 से ज्यादा पावर है तो क्लोरीन Cl माइनस भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. अब पर मैग्नेट का देखो EMF कितना है? 1.5. ये क्लोरीन को कर देगा ऑक्सीडाइज. डाइक्रोमेट का क्या है? 1.38. वो क्लोरीन को नहीं कर पाएगा. तो अगर डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं तो हम लोग HCl या H2SO4 कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो बचा हुआ एसिड का आयन होगा वो इंटरफेयर नहीं करेगा. लेकिन अगर परमैंगनेट यूज कर रहे हैं तो सिर्फ H2SO4 यूज कर सकते हैं, HCl नहीं यूज कर सकते क्योंकि HCl यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? तब KMnO4 दोनों से रिएक्ट करेगा, आयरन से भी और HCl से भी. Then I cannot say equivalents of KMnO4 are equal to equivalents of iron, and hence we will not be able to estimate its quantity. So Cr2O7 2- can be used both with HCl and H2SO4. MnO4- can only be used with H2SO4, not with HCl. Clear? और बोलो क्या डाउट है? विंडो में और कोई नहीं है? बोलो एडवांस फर्स्ट. सेकंड वन. ओके, चलो एक ये प्रॉब्लम और देख लेते हैं. एडवांस कंसेप्ट टेस्टर्स प्रॉब्लम 2. We are given that assume impure copper contains iron, silver and gold as impurity.
After passage of 140 amperes for 482.5 seconds, mass of anode decreased by 22.26 grams. Mass of cathode increased by 22.011 grams. Find the percentage of copper and iron in the original sample. तो अब एनोड और कैथोड साइड की अगर रिएक्शंस देखें इसमें, तो एनोड में मेरी इम्प्योर प्लेट लगी है जिसमें कॉपर है, इम्प्योरिटीज है आयरन, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे पहले एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, सबसे एक्टिव मेटल डिसॉल्व होगा। इन चारों में सबसे एक्टिव मेटल आयरन है, तो सबसे पहले आयरन डिसॉल्व होगा। Fe will go to Fe2 plus and इलेक्ट्रॉन। आयरन इम्प्योरिटी है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा। उसके बाद क्या डिसॉल्व होना शुरू होगा, द नेक्स्ट एक्टिव मेटल इन दीज फोर इज कॉपर। So after iron, the next thing will dissolve. Cu will go to Cu2 plus and 2 electron. Copper is the majority component. मेन चीज तो कॉपर ही है ना, बाकी तीनों तो इम्प्योरिटी है। एक बार कॉपर खत्म हुआ, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड नहीं ऑक्सीडाइज हो गए, क्योंकि एक बार कॉपर खत्म हुआ मतलब प्लेट ही खत्म हो गई। वही तो मेन है ना, वही तो पूरी लैटिस बना रहा है। ये बाकी चीजें तो उसमें इम्प्योरिटी की तरह है। पूरी लैटिस ही खत्म हो गई तो सिल्वर और गोल्ड नीचे गिर पड़ेंगे एज एटम्स, एंड वी कॉल दैट एज एनोडिक मड। तो AgNaU will fall down below as anodic mud. अच्छा, इस रिस्पेक्टिव टाइम कैथोड पे क्या चल रहा होगा? देखो, जब तक आयरन डिसॉल्व हो रहा है, आयरन तो इम्प्योरिटी है, द अमाउंट ऑफ आयरन बीइंग डिसॉल्व्ड एंड हेंस इट्स मोलैरिटी विल बी वेरी लो। तो जब तक आयरन डिसॉल्व हो रहा है तब तक तो कैथोड पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस चल रही होगी। 2H2O will be going plus 2 electrons will be going to H2 and 2OH minus। जब कॉपर यहाँ से डिसॉल्व होना शुरू होगा तो कॉपर यहाँ पे भी डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो कैथोड का वेट गेज जो है 22.001, that can only be due to the copper which has been dissolved here and deposited here। तो बेसिकली प्लेट में कॉपर का वेट तो आ गया 22.011, और एनोड का जो वेट लॉस है वो इन सब का वेट लॉस है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट टोटल वेट ऑफ द प्लेट। तो टोटल वेट ऑफ द प्लेट इज 22.26 ग्राम। तो कॉपर का परसेंटेज तो सीधे निकल गया 22.011 बाई 22.26 इंटू 100। अब आयरन का वेट निकालने के लिए आई कैन डू अ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने भी मोल्स आयरन के हैं इंटू 2 प्लस जितने भी मोल्स कॉपर के हैं इंटू 2। वही चीजों के लिए तो यूज हो रहा है ना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, करंट पास हो रहा है 140 एम्पियर into 482.5 by 96500। मोल्स ऑफ आयरन हो जाएंगे रेट ऑफ आयरन बाय 56 into 2। मोल्स ऑफ कॉपर हो गए 22.011 बाय 63.5 into 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट मोल्स ऑफ आयरन, सॉरी वेट ऑफ आयरन, and then you can calculate percentage of iron। Clear? चलो नोट कर लो। आपने रीजन क्या दिया था कि कैथोड पे Fe डिपॉजिट में उसका अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, इम्प्योरिटी है ना वो।
सर हाँ विंडो का कॉम्प्रिहेंशन 3 का 9th वाला डाउट है। दैट प्रॉब्लम यू डू आफ्टर इनऑर्गेनिक, वो अभी करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक में जब कलर्स कर लोगे सारे कंपाउंड्स के। ठीक है सर। So, window was an expression subjective. विंडो का जो 7th सब्जेक्टिव है, दैट सेम प्रॉब्लम इज, देखो एडवांस कंसेप्ट टेस्टर्स का फर्स्ट प्रॉब्लम। जैसी एडवांस कंसेप्ट टेस्टर फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट सेम इज विंडो सब्जेक्टिव 7th प्रॉब्लम। चलो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक विंडो वाले में उसका आंसर मिस प्रिंटेड है, एडवांस वाले से करते हैं। देखो आंसर चेक करते हैं। तो एडवांस कंसेप्ट टेस्टर्स फर्स्ट प्रॉब्लम, लेड स्टोरेज बैटरी पे है। लेड स्टोरेज बैटरी के एनोड कैथोड रिएक्शन दिए। लेड प्लस सल्फेट गोज टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू लेड सल्फेट एंड 2 वाटर। ये कैथोड का रिएक्शन। अब कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद हमसे पूछा गया है हाउ मेनी एम्पियर आवर्स दैट बैटरी हैज बीन यूज्ड, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ है ये निकालना है, या कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। नाउ यू कैन सी इन दिस रिएक्शंस, एनोड पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैथोड पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम। तो ओवरऑल दिस रिएक्शन इज फ्लोइंग 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जगह पे प्रोड्यूस करके एक जगह पे कंज्यूम करा। वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं? 2 ना, टोटली देखो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है ना। तो फॉर फ्लोइंग 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 moles of sulfuric acids are getting consumed. So I can say moles of electron flown will be equal to moles of sulfuric acid consumed. Agreed? So that will be initial sulfuric acid minus final sulfuric acid. Initial कितना है sulfuric acid? बैटरी का वॉल्यूम है 3500 मिलीलीटर और डेंसिटी क्या दी है स्टार्टिंग की 1.294। तो टोटल सोल्यूशन का वेट इतना हुआ। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज कितना है 39। तो दिस इज द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये इनिशियल सल्फ्यूरिक एसिड है। फाइनल सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा 3500 इंटू 1.139 और फाइनल परसेंटेज कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड की 20%। तो ये फाइनल वेट हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हाउ मेनी व्हाट इज द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड दिस मच। तो व्हाट आर द मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड दिस मच। So moles of sulfuric acid consumed आ गया, that is moles of electron flow. You need to find how many ampere hours has been these used. तो अगर इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन है तो कूलम्स में कितना चार्ज होगा into 96500. This is ampere second. Coulomb is ampere second. You want how many ampere hour?
तो divide by 3600. तो एम्पियर आवर्स will be जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट पार्ट से यहाँ से आएंगे that into 96500 by 3600. तो इधर 2 मोल SO4 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसके लिए अपन को डिवाइड करना है. हो गया? ओवरऑल लिख लो. ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 gives 2PbSO4 plus 2H2O. तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. हो गया कंप्लीट डाउट्स? ओके. तो सॉलिड स्टेट में आई थिंक द ओनली थिंग रिमेनिंग वाज आयनिक सॉलिड्स द एंड दैट वी विल डू आफ्टर मेजर टेस्ट ऑफ yesterday तक जहां तक हुआ था सॉलिड स्टेट में दैट ऑल कैन कम इन मेजर. तो वो सब रिवाइज कर लेना. करेक्ट? Then after major test we will complete solid state. Stop here. चालू है. रिकॉर्डिंग चालू है. चाय बना चाय.
चाय में जो गर्मा गर्म अरे यार शुभ कौन दे रहा तू पढ़ता नहीं पहले